جان علی نام ہے. ایسا بھی سانس ایک ایسے سوروں کے آگے بنوا لو کیا رہی نا آگے کچھ پیچھے آگے آپ سے بس السلام علیکم میرے چاند میرے مکھن میری ملائی. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب زدنی علما. بہت ہی قابل قدر اور قابل عزت اور قابل رشک لوگوں سے آج مجھے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں یہ بات کی ہے قابل رشک لوگوں میں. آپ نے سمجھا نہیں ہے میں نے یہ لفظ کیوں کہا ہے کہ آپ وہ لوگوں میں شمار ہیں جن کو رسول خدا نے کہا تھا لکھو. جو بھی کاتبے وہی آپ کے پاس ہوتے تھے نا تو حضور کہتے تھے لکھو. اس لیے میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ میں اپنے آپ کو آج بہت ہی خوشی میں محسوس کر رہا ہوں کہ ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کا شعبہ لکھنا ہے اور لکھنے والے رسول اللہ کے دور سے چلے آتے ہیں. اور میں یہاں حکومت پاکستان سے بھی یہ بات کہوں گا کہ آپ کا تو سلوگن آپ کا تو نعرہ ہی مدینے کی ریاست ہے. تو جب لکھنے والے کو مصطفیٰ نے عزت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو پیچھے رکھنے والے. یہ قومی کانفرنس جو ہے کرن روشنی کے زیر اہتمام مجھے دعوت مجھے بہت قریبی رشتے نے دی ہے. میرے پھپھا نمان صابری صاحب ہیں. یہ میرے پھپھا جی ہیں جنہوں تسی پنجابی چ کتے سودا لین جاؤ نا دکاندار نو کہو انہیں کٹ کر لا وہ آدھا تو میرے پھوپھا دا پتر. ہاں تو میری پھپھی دا پتر ہے. تو رشتہ جڑا ہے نا بڑا گوڑا. تو میرے چاہنے والوں جتنے میرے چاند میرے مکھن میرے بزرگ ارشد صاحب تو ویسے میرے فیس بک فرینڈ بھی ہیں. اور فرینڈ میں جب آدمی فرینڈ کہتا ہے تو اس میں عمر کا تعین نہیں ہوتا. یہ ہمارے میں سب سے زیادہ کمی ہے کہ جب بچہ ہمارے پاس بڑوں میں بیٹھ کر بولتا ہے بس جی اتنے بڑے بیٹھے اور چھوٹے نہیں بولتے. بھائی بولن گے تو تسی غلطی کٹو گے نا. یہ بچوں کے لیے آپ کے ساری لکھنا. انسپیکٹر صاحب جو ہے نا میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. فیصل آباد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. ان کے گھر میں گیا ان کی لائبریری میں نے دیکھی ہر طرف بڑے پیار سے بڑی محبت سے کتابوں کے نام لکھے ہوئے اور پھر باقاعدہ ان کی تاریخ ان کی جناب اعلیٰ سن ادوار لکھے ہوئے. اور میں سوچتا تھا پہلے میں اپنے چھوٹی سی عمر میں بڑی ترقی کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں آپ کو بھی بتاؤں آپ نے اپنی ڈائری اپنی کہانی کا یہ لفظ حصہ بنانا ہے. بچہ پڑھنے سے نہیں سیکھتا بچہ دیکھنے اور سننے سے سیکھتا ہے. اور ماں باپ جو کتاب بچے کے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے وہ بچے کے کان سنیں گے. اور جو اس کتاب میں لکھا ہے باپ اپنی اولاد کے سامنے کرے گا تو بچے کرنا سیکھ جائیں گے. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. یہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے وہ کیسے شو کیس میں جوتے لگائے ہوئے ہیں. یہ ہماری پستی کی علامت ہے کہ ہم نے کتاب کو نہ جی فٹ پاتھ پہ لے آئے اور جناب یہ جوتوں کو ہم نے شو کیس کی زینت بنایا. اسی لیے تو ہم ہر حکومت سے جوتے کھاتے ہیں.
اگر ہم نے کتاب کو شوکیس میں لگایا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا ان کی فنکاریوں کا. کتاب پڑھنے والے انسان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا دماغی لیول جو ہوتا ہے نا، اس نے خود پڑھا ہوتا ہے، وہ بڑی محبت سے، بڑے اعتماد سے، بڑے یقین سے یہ بات کرتا ہے کہ میں نے خود آنکھوں سے پڑھا ہے. جو عین الیقین بات ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. وہ آدمی پنجابی تسی کہہ نہیں دیندے یار میں گل کرنا ہے، وہ تو اتھے سا تو ویکھیا سی. اس کا مطلب ہے کتاب پڑھ کے بات کرنے والا انسان کسی میدان میں بھی ہار نہیں کھاتا، نہ اس کی کوئی انسلٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے ٹائم دیا ہوتا ہے کتاب کو. آج کی تقریب میں نے جتنی باتیں کرنی ہے نا، انشاءاللہ مجھے امید ہے میں کچھ آپ لوگوں سے سیکھوں گا، کچھ آپ مجھ سے سیکھیں گے، اور ہم سب سیکھنے سکھانے والے لوگ ہیں. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ وہ لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے جو اپنی زندگی میں ایک صدقہ جاریہ تیار کر رہے ہیں. ایک بچہ بھی آپ سے سیکھ گیا یا آپ کی کہانی پڑھ کے خوش ہو گیا، انشاءاللہ قیامت کے دن وہ پہاڑ بن کے آپ کو ملے گا. کیسے؟ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ بچوں کو کس نے سکھایا ہے؟ پہلے یہ بات نوٹ کریں، ہمارے رویے اپنے بچوں سے وہ نہیں ہے جو مصطفیٰ کے بچوں کے ساتھ رویے تھے. ہمارا کیا رویہ ہے اپنے بچوں سے؟ ہم نے ان کے ساتھ چیٹنگ کرنا ہوتی ہے، تو چیٹنگ اسلام نے منع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آپ نے کسی بچے کو بلاتے وقت یہ نہیں کہنا کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، آپ آ جاؤ. اگر آپ نے نہ کیا تو وہ بچے کے دماغی لیول میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میرے بابا نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں بھی کسی کو دھوکہ دوں گا. ہم نے کیا کیا آج تک؟ یہ اتنی بڑی قومی کانفرنس رکھی ہے، اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچا. مگر ہمارے رویے کیسے ہیں؟ بچے ہمارے کتاب کے قریب کیسے آئے، ہمارے قریب کیسے آئے؟ ہمارا جو معیار ہے بچوں کے ساتھ بولنے کا، چلنے کا، سب سے بڑی مسجد تھی نا جہاں سے بچوں کو کچھ ملنا تھا، وہاں تو ہم اس کو کہتے ہیں اس کو گھر چھوڑ کے آؤ، اس سے چھوٹا ہے تو وہ لے آؤ. ہم نے تو وہاں ہی بچوں کے دل توڑ دیے. تو رسول اللہ کو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، یہ 150 فٹ مینار بنانا ہی سیکھا ہے ہم نے مسجدوں کے، مگر جو مسجد سے ملتا تھا وہ ہم نے سیکھا نہیں ہے، وہ ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہی نہیں. آؤ میں بتاتا ہوں، ایک بچہ تھا حضرت عمیر، اور یہ بزرگ طوطے کی بات کر رہے تھے، میں بڑا خوش ہو رہا تھا ادھر بیٹھ کر. تو ان کے طوطے کا ذکر تو مصطفیٰ کے دور میں بھی آیا. آپ نے پوچھا ماں حاضر یہ کیا ہے؟ آئینہ عمیر، عمیر کہاں ہے؟ تو سبھی نے اس کہا یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا وہ بچہ تو بیمار ہے، اس کا طوطا فوت ہو گیا. اب ہم تو کسی کے مرنے کی خبر نہیں نہ پوچھتے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، ہم تو کس سے پوچھتے ہی نہیں، خبر لینے نہیں جاتے. یہ مسجدوں میں 6 لاکھ کے قلیم بچھے ہوئے ہیں، اس پہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا، اس کے پاس 200 کے جوتا موجود نہیں. ہمیں قلیم کے اچھے ہونے کی خبر ہے، اس کے جوتے کی خبر نہیں ہے. مگر مسجد نبوی کیا تھی؟ وہ مسجد مرکز اصلاح معاشرہ تھی. ہماری مسجدیں رہ گئی ہیں صرف صدارت کی، خزانچی کی، سیکٹری کی، اور بس واہ کی. مگر وہ جو مسجد تھی وہ ہر ایک کا خیال رکھنے والی جگہ تھی. اس مسجد میں مصطفیٰ نے، ہمارے نزدیک تو بڑوں کا خیال نہیں رہا، مگر بچوں کے ساتھ مصطفیٰ کا کیا رویہ تھا. ایک سلطنت کے مالک تھے، پریزیڈنٹ تھے، وزیر اعظم تھے، نبیوں کے سردار تھے، رسول خدا تھے، پروفٹ تھے، میسنجر تھے. ان کے اوپر کتنی ذمہ داریاں تھیں، ان کے مائنڈ میں کتنی چیزیں ہوتی تھی، مگر اس نبی کے مائنڈ سیٹ میں ایک بچے کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ کہنے لگے آئینہ عمیر، عمیر کہاں ہے؟ یا رسول اللہ اس کا طوطا جو ہے وہ نبی فوت ہو گیا ہے. تو آپ نے کہا چلو اس کے ساتھ جا کے تعزیت کرتے آتے ہیں. ایک بچے کے طوطے کی تعزیت
हमने कभी सोचा कि मेरा बच्चा पास हुआ है तो मैं इसके साथ चलूं और इसके उस्ताद को जाकर सलूट करके आऊं, बच्चा भी खुश हो जाए और उसका टीचर भी खुश हो जाए। हमने कभी बच्चे के काम को अहमियत दी नहीं है। अपने नौकरों को बोलते हैं कि जाओ बच्चे के साथ उसके स्कूल में चले जाओ, इसका काम है जो कर दो। हमने अपने बच्चे को अहमियत के काबिल समझा नहीं। भाई हमारी क्या औकात है, वो नबियों के सरदार हैं, एक बच्चे को खुश करने के लिए उसके घर जा रहे हैं। अपने नबी के लिए तो आपकी क्लैपिंग सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। आप जब गए, आप किताबी लोगों को मैं इसलिए ये वाक़या सुनाया है कि ताकि आप भी इस नहज पे जाकर ये वाक़या नकल करें बच्चों की अहमियत के बारे में। आपने ये डायरी में अरशद साहब मैंने आपसे देखना है, आपने लिखना है और वो मुझे सेंड करना है कि बच्चे की अहमियत क्या है इस्लाम में। ये जो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम तो इज़्ज़त नहीं देता, ये चिल्ड्रन के मसले में जी यूरोपीय मालिक ने बड़े अच्छे कानून बनाए, भाई हमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। इधर एक साहब कह रहे थे मुझे बड़ा अच्छी लगी कि हमने तो इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, और इस्लाम ने जो हमें सिखाया है जाकर मेरे महबूब बैठ गए और फिर पता क्या कहा, बच्चे के माइंड सेट के करीब, नेचर के करीब मैं क्यों कामयाब होया है, मैं जिहड़ियां गल्लां वेखदा है वो करदा है। बच्चों के सोच के करीब जाके ना भी माइंड सेट के करीब जाके गल्लां करना है। मेरे नबी ने कहा मेरा चंद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई हो मैं आ मेरे को बैठ। आपने अपने कोल बिठाया, सिर ते हथ रखिया, प्यार किया, चुमिया। सदके जावां जिहदे पसीने नाल रुमाल लग जाए तो दोज़ख दी अग नहीं उन्होंने जला सकती, मुस्तफा उन्होंने चुमन है। अच्छा चलो मैं आप हूँ मैं जिन्हें तुसी बैठे ना, मेरिया भैन बैठिया, मेरे भरा बैठे, लै भी तुहानूं कसम पा के कह लगा झूठ नहीं जे बोलना। सवेर तो लैके हुण तक जो घरों निकले जे कोई बंदा दसे कि मैं अपने बच्चे नूं चुमिया 1 2 3 4 5 6 भैन नहीं, औरतां तो चलो अपने बच्चों नाल प्यार कर दिया। इन्हां नूं पुछण लगा जिहड़े बहुत ठेकेदार बंदे ने मेरा पुत्तर है। मेरा ताया कहता जी बच्चे सुते ही जो मैं घरों निकले ते ताया ये भी जनाबे वाला साढ़े च सिफत नहीं, बच्चे सुत्तियां ते असीं बाहर निकल जाने, सुत्तियां ते असीं आने तो इदों ही पता लगता है कि वो लोग तो दसते ना मेरा बच्चा एडा है, तो उन्हें दसिया सी मेरा बच्चा एडा है, फिर एडा है, फिर एडा है। उन्हें कहा ये की, उन्हें कहा मैं सुत्तियां नूं वेखदा, मैं खलोतियां नूं नहीं वेखदा। आज हाथ खड़े करके मेरे से वादा करे कि जब भी आपने घर से निकलना है, ये पहाड़ी लोगों से कुछ सीख लो। इधर जाए ना हसन अब्दाल, इधर जाएं तो अपने छोटे जो हैं वो अपने बड़ों के हाथ चूमते हैं, बड़े उनका पेशानी चूमते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को चूमा करें, आपके बच्चे आपका हाथ चूमेंगे। अच्छा चलो मैं यहाँ चूमने की बात आ गई ना, तो मैं आपको ये बात सिखा देता हूँ कैसे। मुस्तफ़ा ने चूमा, उसको गले लगाया और प्यार से पूछा बेटा आपका वो तोता जो है उस जैसा तो पूरे मदीने में नहीं मिलेगा, वो बड़ा ही अच्छा था। वे बच्चे की चॉइस को मुस्तफ़ा ऊंचा कर रहे हैं उसको खुश करने के लिए कि जो मेरी चॉइस थी वो तो मुस्तफ़ा ने भी बता दी कि बड़ी अच्छी थी। अच्छा भी तुसी आज बच्चे की कुछ शह चीज़ी खरीदी, कह दो ना पुत्रा बड़ी सोहनी, कितना खुश होंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तोता बड़ा प्यारा था, वो बड़े खूबसूरत था, वो बड़ा ही अच्छा था, मगर मेरी जान अब वो फौत हो गया, हम आपको उस जैसा एक और ला देते। वो बड़ा मुस्कुराया बच्चा जो खाता नहीं था, पीता नहीं था, परेशान था। आपने पास बैठाकर उसको इतना प्यार दिया, उसके दिमाग के करीब जाकर ऐसी बातें की कि वो खाने भी लग पड़ा, पीने भी लग पड़ा, मुस्तफ़ा ने उठ के खेलने भी लग गया। बच्चा देखने से सीखता है, टाइम से सीखता है, उसको टाइम दें। कितना टाइम देते हैं आप अपने बच्चों को? सारा जुम्मा बेगम के जुम्मे हैं। फिर अच्छा फिर ये हमारे जो मर्द है ना, इनमें एक बड़ी बीमारी है, वो तुसी सारा मां ही प्यार कर दे तो मां सारा दिन फिर प्यार क्यों ना लवे, शाम को सौंदी है। ज़रा सुनिया जी, शाम को 6 बजे जब इसका मियाँ आया, उसको खाना खिलाया, वो लंच ना भी खाना खाकर सो गया।
ابھی 10 نہیں بجے ماں سوئی ہے، برتن رکھ کے سارا کچھ کام کر کے بسترے بچھا کر 10 بجے اس کا لال آیا، اس نے پھر اس کو جناب اعلیٰ پکڑا بٹھایا، کھانا کھلایا سلایا، ابھی 12 بجے ہیں، ابھی آنکھ نہیں لگی تو پھر دروازہ کھولا، ابھی 2 بجے تو پھر دروازہ کھولا، 4 بجے اذان ہو گئی، بچوں کے لیے اس نے ٹفن تیار کرنا شروع کر دیا، رکشے والا آیا، بچوں کے بیگ پکڑے اس نے رکشے میں بٹھایا، ابھی بچے گئے ہیں تو کچن تیاری کی ہے، کھانا بنایا ہے، کپڑے صاف کیے، یہ مائیں کیوں نہ پیار لیں، ابھی بچوں کے سکول آنے سے پہلے ان کا لنچ تیار کیا ہے، بچے آ گئے ان کو کھلایا سلایا، پھر ٹیوٹر آ گیا، ٹیوشن آ گیا، ٹیوشن سینٹر کے لیے ان کو تیار کیا، پھر چلے گئے۔ اللہ کی قسم ہے یہ مائیں بچوں سے پیار خود کیوں زیادہ لیتی ہیں، ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے مگر یہ اپنا سکون ان بچوں کے نام کر دیتی ہیں، یہ مائیں قبر میں جا کر سکون پاتی ہیں، دنیا میں اپنا سکون اپنے ہسبینڈ اپنے بچوں کے نام لگا دیتی ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جب بھی دیکھتے غصے سے دیکھتے ہیں۔ یہ مولوی حضرات اور آپ سن لیں میری بات، آپ جب کسی سے غصے میں بات کریں گے نا تو آپ کی اچھی بات کا بھی اثر اس پہ نہیں ہوگا، خواہ اس کے فائدے کی ہو۔ پہلے آپ کی یہ باڈی لینگویج اور یہ فیس، اب ادھر میں بیٹھا تھا نا تو آپ دیکھ رہے تھے جو بھی میرے سے پکچر اتروانے آتا تھا میں غصہ بھی نہیں کیا، یہاں سے بھی مجھے ڈر رہتا تھا کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے میرا چاند ادھر میرے والے جا رہا تھا نا، مگر میں اس کو کچھ نہیں کہا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے اپنی طرف منسلک کر کے کی کہ آپ کو سمجھ آ جائے، جتنے میرے چاند ہیں میرے مکھن ہیں میری ملائی اور جو میرے ملتان کے چاند ہیں ان کو میں سمجھانے کے لیے اور خصوصی پورے پاکستان سے لکھنے والے لوگ آئے ہیں، کاش آپ کی وہ قلم کا حصہ میں بھی بن جاؤں، اس لیے آپ سے پیار سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی لکھے ہوئے لفظ مجھے صدیوں تک محفوظ کر دیں، اور مجھے امید بھی ہے آپ سے، کنجوس تو نہیں ہے، اونچی بولے کنجوس تو نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں کہا مجھے آپ سے امید ہے تو اگلے سال جب پھر یہ کتابوں کے ایوارڈ ملے تو ایک لفظ بھی میرے پر نہ لکھا ہو تو بس میں پوچھوں کیا ہوا، آپ نے کہنا بس آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ تو اب قومی لفظ بن چکا ہے، بس آپ نے، یار تھوڑا سا اور ذرا بولے، بس آپ نے۔ آگے میں خواجہ صاحب کو بول رہا تھا نا کہ جو بھی آتا ہے کہتا ہم خوش آمدید کہتے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں، وہ بھائی سارے خوش آمدید ہی کہتے ہو، کوئی یہ بھی کہہ دے کل وداع کے موقع پہ ہم آپ کو سون الغا ملتان کا دیں گے، انور لٹور چونسا دسہری کالا چونسا جناب اعلیٰ جڑے سوہریاں تے امب لے کے جاندے جی سانو بھی آئی دے آئی، میرا چاند اسی تاڑے مہمان تے گئے نا، میرا چاند تے مہمان واسطے تو بڑیاں عزتیں ہوتی ہیں، یہ محبت ہے۔ میں آپ سے یہ بھی بات شیئر کرنا چاہتا تھا کہ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ کوئی گل نہیں بچہ ہے، بچے کو اہمیت دی، اس کے گھر گئے، ہم نے کبھی بچوں کو اہمیت دی ہے؟ یہ لفظ آج نے آپ نے نکال دینا اپنی زندگی سے کہ جتنے بڑے بیٹھے ہوں تے چھوٹے نہیں بہندے، یہ بڑا غلط لفظ جے، بڑے جتنے بیٹھے ہوتے چھوٹے بہن گے، بچے غلطی کریں گے بڑے سدھارن گے، یہ لفظ نوٹ کرے۔ اگلا میرا ایک بچہ تھا، اس کے والد صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرے بچے کو جن چمڑ گئے، اج کل تمہیں پتہ ہے جنہ دیاں بڑیاں گلاں نے چمڑن دیاں، بولو وہ بولو تے صحیح جی میرے چاند ہے نا۔ اچھا مینوں کہنے لگا مولوی جی ساڈا بچے نوں جن چمڑے نے، انہیں چھت تو چھال مار دیتی، میں کہا چھال جن نے مروائی، کہتے دھکا دیتا کسے جن نے چڑیل نے تے بڑے تام دم کرائے نے تے انہوں رام نہیں آندا تے ہسپتال ہے بچہ، میں کتے جی وہ ہاسپٹل ہے بڑا ہے پیسے بڑے لگ گئے، میں کہا چلو مجھے لے کر چلو۔ ہوں میں تمہیں ایک گل دساں، دم کرن تو پہلے پیسے پھڑ لینے چاہیے، پھر اثر ہوتا ہے چھیتی، اور جننے زیادہ لوگ گے اُنہ زیادہ اثر ہے۔ بیبیاں میری گل ذرا سننی چاہیے دھیان نال، یہ جناب جی ماڑا بندہ ہوگی نا مولوی کوئی ہو جائے تو پھوک مار دے نا، مینوں رام نہیں آیا جڑا 5000 2100 والا بڑا سیاپا ہے،
2000 पूरा नहीं करना, 100 उत्ते रखना, 5200 3100 बोलो आ 100 जड़ा उत्ते रखना ना, ये दिमागी पाउंदा खलन। वो बीबियां कदियां पास जिन्हें पैसे ज़्यादा लेना, मैनू आराम इत्थे ही शुरू हो गया। मैनू लै गए, मैं क्या भाई पैसे तो लगनगे, पर मैं एक बात कहूँगा कि आपने मेरे पास खड़े होना। इधर वो डॉक्टरों के पास वो पर्दा सा नहीं होता, समझते नहीं, और पर्दा लगाया होता है इंज, और रेड़ के इंज नू कर देने, रेड़ के इंज नू कर। वैसे ये काम भी करने पड़ते हैं ना। वो जब आगे किया ना पर्दा, तो मैंने कहा इधर बच्चे का माँ बाप खड़ा हो जाए और इधर मैं खड़ा हो जाता। आपके लिए ये बात सुनाने लगा हूँ कि जब तक बच्चा देखता नहीं वो सीखता नहीं है। ये ब्लैक बोर्ड आगे लगा होता था, उस्ताद लिखता था तो हम सीखते थे। अब हमने क्या किया कि वो डॉक्टर साहब जो रिपोर्टें कहते हैं ना भी इसमें कुछ नहीं है, समझ नहीं आती बच्चे को क्या बीमारी है, तो मैंने फ़ौरन कहा कि मुझे आप इधर खड़ा करें डॉक्टर साहब के पास और आप पर्दे में हो जाए, 7 बच्चे के सुनते रहें जो मैं कहता हूँ। जब वो सारे खड़े हो गए, इधर डॉक्टर साहब, इधर मैं और इधर 2-3 और वो जो उनके अजीज़ थे, उसकी माँ और बाप को मैंने बोला ध्यान से सुनना जो मैं कहता हूँ। मैंने उस बच्चे को प्यार से कहा मेरा जान, मेरा मक्खन, आपने ऊपर से कैसे छलांग लगाई? कहता मुझ में शक्ति आ गई, मैं ऊपर से सुपरमैन बनकर छलांग लगाई। बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। आपके घरों में जब डोरीमोन और शक्तिमान बोले, जब ये बुलबुले ये चीज़ें चलनी है, तो फिर कहते साढ़े बाल साढ़े ड्रामे कर देने, तुसी उन्होंने आगे सूरत यासीन पढ़ी है, जो उन्हें ड्रामे वेखने वो सुबह उठ के ड्रामे करके विखाने। ए सस्सां भी बड़ियां अजीब होंदियां ने, ऐ जी मौलवी जी साढ़े घर चन्न उतरिया, मां शकरे जाए, यहो जी नौ ही कोई नहीं गी, 15 दिन बाद जी दम कर दो जी, तवीत कर दो। मैं खैर है उन्होंने तो चन्न चढ़िया सी, उन्होंने ग्रहण लग गया। 15 दिन बाद ग्रहण लग जाता है। तो मैं पूछा भी ग्रहण को लगा है? सारी रात फिल्मां ड्रामे बेंदी, सुबह उठ के सन नाश्ता ही नहीं कराती। तो मैं क्या वेख्या की सी? वेख्या तो लैंटर लूंटर कारां कूरां, लैंड क्रूजर V8 TX TZ फॉर्चूनर BMW 4 OD अल्टस कल्टस रेंज रोवर लेक्सिस GMC अमेरिकन है, टोटा करोला होंडा सिविक नबी टॉक्सन किया स्पोर्टेड लियाना मेहरान कोरे साबनदानी भी देखिया तो कारा सी, ते वेख्या लैंटर सी, माशाअल्लाह उन्हें घर लैंटर पे ने, उन्हें घर कलीन विछे ने, उन्हें घर फर्नीचर बड़ा सोहना है। तो मैं कहा खा हुण लैंटर नूं, जिन्ना सारी रात फिल्मां ड्रामे देखने ना, सुबह ड्रामे करके दिखाने। आप कितने लोग बैठे, हम जो देखते हैं कहते बड़ा अच्छा है मगर खुद करते नहीं। हम किसी को अच्छा देखना चाहते, खुद अच्छा बनते नहीं। अल्लाह की कसम मैनू बड़ा हासा आता है जो तुसी फेसबुक के उत्ते अच्छा बन के लिखाते जे ना, जो फेसबुक के उत्ते लिखते जे, मैनू बड़ा हासा आता है। तुहाडे आले दुआले भी तो वेंदे होने तू कितना को अच्छा है। ये फेसबुक पे तो पोस्ट बड़ी अच्छी लगती। अच्छा मैं यहाँ एक बात आपके लिए ये सोशल मीडिया के हवाले से लाजमी करना चाहता था कि आप ये बात सुन लें। ये सोशल मीडिया भी अजीब है। हमने 5-5 हज़ार उसमें फ्रेंड रखा हुआ है और उसमें मुझे इतने लाइक मिल गए, मुझे इतने लाइक मिल गए। ये मेरी सिस्टरें और ये मेरे चान, ये बच्चे नौजवान जो ना लाजमी सुने, हाँ जी मुझे इतने लोगों ने लाइक किया है। अच्छा भी जिसने आपको लाइक किया उन्होंने नहीं पता तू केड़ी सगात है, तो जोड़ा लाइक होया उन्होंने नहीं पता मैनू लाइक करने वाले की ने। अगर लाइक का मजा चखना है ना तो हम तुम्हारी गली में चलते हैं, देखते हैं तेरी सिस्टर कहती आई लाइक यू ब्रदर, तेरा भाई कहता आई लाइक यू सिस्टर, तेरा हमसाया कहता है आई लाइक यू मेरा चन। फिर तो पता चले ये तुम्हें लाइक मिलते हैं, तो ये तो लाइक तुम्हें वो स्क्रॉल करके गुजर जाते हैं, उनको क्या पता क्या है। हाँ मेरा चन जानने भी क्या जी बहुत खूब। जितने तुसी बैठे जे अन्ने मेरे चन बई हनेरा हो गया है, जेबां दा ख्याल रखिया जे। अक्सर जगह के उत्ते हनेरा होवे, मैं तुहानूं दस्सिया मस्जिद च मैं हनेरा उन्हां बत्ती बुझाती, किसी शरारती ने मेरी भी जेब कट्टी गई, कईयां दी कट्टी गई। हाँ जी
ये मेरे चंद बच्चे हैं। मैं आपको ये बात समझाने के लिए करने लगा हूँ कि आप फेसबुक पे जितने लाइक लेते हैं ना, अल्लाह की कसम उठाता हूँ, अगर अपने खाली घर में लाइक ले लें, खैरुकुम ले अहली वाना खैरुकुम मिन अहली, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है। अहलो अयाल में बच्चे भी आते हैं, अहलो अयाल में बीवी भी आती, अहलो अयाल में माँ बाप भी। किधर गया वो दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह। उदों दौर मशीनी नहीं सी हैं, उदों दौर शहरां दे विच शोर नहीं सी, बहुते डाकू चोर नहीं सी अखां विच या। ये औरतें लाजमी ये शेर सुने, मेरी बहनें जो बैठी हैं ना, इनके लिए, ये मेरी माँ बहनों के लिए मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ, और इधर जो मर्द बैठे हैं इनके लिए ये लाजमी है। अब बच्चे हमसे सीखते हैं, बोलो घरों में बच्चे किससे सीखते हैं? ऊंची बोले, किससे? हमसे सीखते। अच्छा बेटा ये आप बैठ जाएं यार, उनको नज़र नहीं आता, आप बैठ जाएं, चल पुत्र तले बैठ जा, मेरा चंद मेरी मन बैठ जा, बैठ जाओ, इधर आ जाओ साइड पे, इधर आ जाओ, इधर बना ले, इधर आ मेरा चंद इत्थे। अच्छा भाई इतने बैठे हैं, जेड़ा मैं शेर पढ़िया, किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह। ते हुण मोटर सड़ जाए ना, बंदा चाचे घर पानी भरन जाए, दूजी बार बटन सुट्टे ना, चाची वेख के लग पैंदी, ये साडा भी हुण पंप साड़ के ही साह लिया जे। चाचा भावें ना बोले, चाचा भावें ना बोले, सर जी ये जितने फ्रेंड के मेरे मेहमान हैं, सलूट यू। जितने आप मेरे काबिल इज्जत दोस्त बैठे हैं, चाचा भावें ना बोले, चाची ज़रूर बोलेगी, पर जदों दी हुण तब्दीली आई, चाचियां च भी आई जे। हुण चाचियां डायरैक्ट नहीं बोलदियां, चाचे दे विच चाची बोलदी है। अच्छा जब चाची ने ये रोक दिया, आपके बच्चों ने क्या सीखा आपसे? कि हमारे माँ बाप तो अपनों को पानी भरने की इजाजत नहीं देते। ते चाची दी कोई सहेली नाल दे घरों आवे ना, उन्होंने कहती तू मैनू दसना सी, मैं पैप ही इधर घल देंदी, मोटर ही। मैं अपनी बहनों को बोलूँगा, खुदा के लिए करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा। सभी बोले खुदा मेहरबान होगा। इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ कैसे। किताब अपने बच्चों को आप देते हैं, उसमें आप अच्छी बात लिखते हैं, सबसे बड़ी किताब आप हैं। आप अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी किताब खुद हैं। आप अपने बच्चों को वो दिखाएं जो बच्चा करे तो बाहर से आपको दाद मिले। तुसीं निक्के हुंदे वेखिया सी, बच्चा बाहर कोई चंगा काम करता सी ते सियाने बंदे कहंदे सी वाह चंगी मां दा दुध पीता है। ये गल करदे सी ना, उच्ची बोलो। चलो मैं एक राय देना है, मां दे दुध की ताकत बड़ी हुंदी है, ते डब्बे वाले तो चलो तुहानूं पता 16 कौम है, ते माँ दे दुध की ताकत ने गवाही पा दो। जो कोई बंदा बाहर चंगा काम करता सी ते बंदे वड्डे सियाने वेख के कहते सी वह चंगी माँ का दुध पीता है। इसके क्या रीज़न थी? माँ पर धी पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं ते थोड़ा थोड़ा वल तुम्हें दी कौड़ी हुंदी, असर हुंदा विच बीआं, जेड़ा काम मावां करदियां ओह करदियां धीआं। माँ पर धी पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं ते थोड़ा थोड़ा। किधर गया वो दौर पुराना ते पै खुदा वास्ते वापस ले आए। वो दौर वापस ले आओ, चीज़ वंड के खाया करो। चाह का कप भी पिया हो ना तो नीयत ये हो या अल्लाह मेरा बेली आ जाए, अद्धा वंड के खा लीए। पर साडा तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। कोई बर्फ का कौला मंगना जे, साढ़े घर तो बत्ती गई है, पानी भी बाहरों नहीं आता, एक बर्फ के कौले तो साडा बेड़ा गर्क हो जाता। चीज़ वंड के नहीं खानी तो ताइए तो साढ़े बच्चे नहीं उस पासे जा रहे। किधर गया दौर पुराना, ये आखिरी दो चंद बातें हैं। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह। वो तो दौर मशीनी ने। अज मैं तुहाडे कोल एक वादा लैना है, तुसीं सारे वड्डी उम्र च जरूर पहुँच गए हो कि माँ नूं एक दिन बाया करो चुल्हे ते। वो कच्चे चुल्हे हुंदे सी, उत्ते मिट्टी दा बर्तन हुंदा सी ते हत्थ 'च नाभे वाला एक डूंगी हुंदी सी ते चाह माँ सारिਆਂ ਨੂੰ पा के दिंदी सी ते बच्चे 4 चफेरे बहिंदे सी। उदों घर दे 8 कमरे नहीं सी हुंदे, 2-3 कमरे हुंदे सी ते दरवाज़ा एक हुंदा सी।
ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਕਨਾਲ ਤੇ 5 ਬੂਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 5 ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ MP MN ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਵਡੇਰੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓ ਦੀ 10 ਕਨਾਲ ਹੋਵੇ, 5 ਕਨਾਲ ਹੋਵੇ, 1 ਕਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵੰਡ ਲਓ, ਪਰ ਬੂਹਾ 1 ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗੀ। तेरे बच्चियां को यह सबक मिले कि एक दरवाजे चौसा गुजरना है। ये मोहब्बतें क्यों अभी ये मेरा दोस्त बता रहा था कि ये जलालाबाद में कत्ल हुआ है तो भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, भाई ने अपनी नावेला भाई की बेगम को कत्ल कर दी। तो ये क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं? अब बच्चों में क्या जाएगा कि खूनी रिश्ते में एक दूसरे के दुश्मन। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह। उदों दौर मशीनी नहीं सी, शहरां दे विच शोर नहीं सी, बहुते डाकू चोर नहीं सी अखां विच हया। जिधर वेखो अखां च हया किन्ना हुंदा सी। मलतानों गड्डी जदों खलोनी आके टांगे चलदे हुंदे सी अपने अपने इलाके च आउण लई, मंजूराबाद आउण वास्ते TMA आउण वास्ते ना टांगे आउंदे सी। टांगियां ते बह जाना ते कोचवान हुण ते रक्शियां ते बहिंदे गाने ला दिंदे ने ना अंतरे। उदों टांगियां वाले पुछदे हुंदे सी पुत्तर तू कित्थों आया है, तू किधर चला है, किदा है, लगदा पौंदा की है? अजी मैं फलाने दा जवाई है। उन्हें उत्तर लगने पैसे देने ते उन्हें आखना मैं गरीब जरूर हाँ पर बगैरत नहीं। भी भाई तू ओदा जवाई नहीं, तू मेरा जवाई है, तो जा मैं तेरे को पैसे नहीं लेने, तेरे घर साड़ी पिंड दी धी है। तो अब इत्थे रक्शे ते बह जाओ तो अब्बल तो उन्हें पूछना ही नहीं। तो जे 10 भी दे ना मैं फलाना जवाई है, मेरे को 5 घट है, उन्हें तू इत्थे उतर। ये बेहिस हो गई है कौम। कोई पुराने साढ़े च हया नहीं रहे। हया किन्ना हुंदा सी जिहदे कोल जमीन हैगी है। कोई जिमीदार बंदा हथ खड़ा करे हैं जिहड़े जिमीदार विच ने, कोई जिमीदार है विच? जिमीदार कोई ज़मीन हैगी है? मैं लैन नहीं लगा, मैं तो जी पुछन लगा। अरशद साहब माशाल्लाह इन्हां को ज़मीन उन्हां को ज़मीन है। खाल खालन जाईदा सी ते खाल खालदियां विच बुढ़ा बंदा भी मुद्दा कढ़दा हुंदा सी। मुद्दा समझदे बड़ा करम दा मुद्दा दिंदे ने भी तुसी भाई इन्नी तेरी है तू कढ़ना खाल इन्ना। ते विच एक बाबा होना ते गभरू मुंडिया आखना ताया तू उत्थे बाहर बह जा, तेरा भी असीं कढ़ देने। बोलो तेरा भी असी कर दे। ते जे ताया बंदा जवान बंदे दे कोल बजुर्ग बंदा बस तो उतरना, उन्हें घर की गली च पैना ते सिर ते भार चुकया होना ना, ते भार चुक के उन्हें तुरना। ते गभरू ने आखना ताया साडे हुंदिया तू भार चुके साडा जीना किस काम दा है, मैनू फड़ा मैं छड्ड आउणा है। पर हुण दे बच्चे की करते हैं? सियाणे बंदे ने भार चुकया होवे ना ते आप भी चुकया है ते आंदे ने ताया तू पुराना देसी घ्यो खादा है, अब मेरा भी घर फड़ा दे, तू बाबा ताकतमंद बंदा। भाई ये हमारे बच्चों में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे का हया, ये नज़रों से ख़त्म हो गया। हाँ जी, सी अखां विच या खुले बूहे होंदे सी कि दी शहर डंगर खुल के बाहर चले जाना, लोग फड़ के किले ते बनना पाई है तुहाडा डंगर है। हुण वो अगर किसी का अज के दौर च खुल जाए ना डंगर, वो उत्थों ही लद के शाह पर लाहौर लाई जाते हैं, मंडी बेच दवो। हुण तो भाई अल्लाह जानदा बहुते डाकू चोर, उच्ची बोलो, बहुते डाकू चोर नहीं सी। हुण मसीतों जुत्ती नहीं छड्डदे, नलके नालों हत्थी नहीं छड्डदे, कूलर ना गिलास नहीं छड्डदे, हुण भी संगली लाउणी पैंदी है। अब वाटर फिल्टर प्लांट लगे ने, उत्थों अंतरे टूटियां ला जांदे, विच मसवाका तुण जांदे ने। कोई हाल है? इस कौम का कित्थों तक म्यार अखलाक, एथिक्स, अखलाकियात, मुआशराती जिंदगी कित्थों तक गिर चुके है कि गिलास नूं संगली लानी पैंदी है कि पानी पी के लोग गिलास लै जाते। बताए ना, ये हमारा ये सारा वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हम कर रहे हैं, जो हमारे मुआशरे में। मसीतों जुत्ती नहीं छड्डदे, नलके ना हत्थी नहीं छड्डदे, कूलर ना गिलास नहीं छड्डदे, हत्ता जांदा सोलंग दियां इट्टां पुट के खोती की खुरली बना लेंदे, गटर का ढक्कन नहीं छड्डदे। हाँ जी, तुसीं ये कहिंदे 100 का नोट पिया हो, जुमा पढ़ के निकल उत्ते पैर रख लें, तेनों की होया? मेरा पैर सौ गया। ये नहीं पता ईमान सौ गया। 100 ते मान को आ जाते हैं। 1000 का भान लैन जाओ, तुहानूं 1100 वापस आ जाए, वो 100 वापस नहीं करना, 100 ते मान को आ जाते।
भाई ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। सी अखां विच हया किधर गया तो पिंड दी धी लंघनी लोग नज़र नीवियां कर लैनियां। ए भाई साडे पिंड दी धी है, चौक च मुंडे नहीं सी खड़े होंदे, वड्डे बंदे कहंदे चल तेरा की काम है इत्थे खड़ा होना, इत्थों धीआं भैणां लंघदियां, गाड़ी काट ते बह के नहीं सी लंघदा किसी घर झाती ना पवे, नंबरदार घोड़ी ते बह के पिंड नहीं सी लंघदा किसी घर झाती ना पवे। हुण छत ते कबूतर डाउंदे हुण ते कहिए ना कि यार तू इधर ना झाती मार, आंदे तुसीं लेंटर पा लो। भी गरीब लेंटर पाउण जोगा हुंदा तैनूं कहंदा ही क्यों? ये है हमारी पस्ती का वजह कि हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं। बच्चे कैसे सीखें? हम करते ही नहीं। हम करेंगे तो वो सीखेंगे ना। पहले तो सबसे बड़ी आप खुद किताब बने कि जो आप किताब में लिखते हैं वो अपने घर में अपने ऊपर नाफज करके दिखाएं। वो आपके बच्चे चलती फिरती किताब होंगे, पूरे स्कूल में, गली में, बाज़ार में, जहाँ भी जाएंगे मुल्तान के चौक में तो लोग कहेंगे एक राइटर का बच्चा जा रहा है, एक मुसन्नफ़ का बच्चा जा रहा है और मुसन्नफ़ इब्ने मुसन्नफ़ जा रहा है। आप एक बहुत बड़ी किताब है, इंसान तो है ही किताब है। अच्छा मैं यहाँ एक जुमला बोलने लगा हूँ, अंबिया को कोई नेकी करने की ज़रूरत है थी? नहीं, वो तो नेक थे, वैसे ही गुनाहों से पाक थे, मासूम थे, मगर अल्लाह ने अपने नबियों को कहा कि अपने यारों से मशवरा कर लो, सिर्फ कुनिया को सिखाने के लिए कि तुमने भी एक दूसरे से मशवरा करना है, एक दूसरे के दिमागी सलाहियत को बरूए कार लाना है। अब हम मशवरे को भी ले तेनू मेरे तो नहीं यकीन बोलो। इत्थे सस नौ नूं कह देवे ना कि नाल दी दरानी जठानी नूं पुछनी लै हुण मेरा दिमाग हो तुम्हें गया वा मैं उन्होंने पुछ के तुरा। नहीं नहीं, ए पंजाबी दीयां गल्लां जिहड़ियां मैं कर रहा साडे घरां च इंज हुंदा है। हाँ जी, बहुते डाकू चोर नहीं सी अखां विच हया किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह। उदों कज़न स्यापा नहीं सी, चाचे दी धी पतरेर हुंदी सी, मासी दी धी मसेर हुंदी सी, फुफी दी धी फफेरी हुंदी सी, मामे दी धी ममेरी हुंदी सी, रिश्तियां दी वंड हुंदी सी, हया हुंदा सी। हाँ उदों कज़न स्यापा नहीं सी। और हुण जिन्हों पुछो चाचे दी धी कज़न, मासी दी धी कज़न, कुड़ी है ते कज़न, मुंडा है ते कज़न, कज़न कज़न कज़न, बस उदों ही पता लगदा जदों हाई कोर्ट च डजन हुंदा है। चलो ये केड़ा कज़न सी? उदों कज़न स्यापा नहीं सी, आंटी अंकल पापा नहीं सी। बोलो आंटी अंकल पापा नहीं सी, एडे चिट्टे खून। क्यों ताया तेनू कदी पापा कहा सी किसे? बोलो हर अपनी अपनी बोली बनाओ ना अपने घर। अच्छा भाई अंग्रेजी तो हमने इतनी पढ़ ली कि अंग्रेज को पढ़ाने लग गए और अपने जनाजे के लिए फातिहा भी ना बच्चे को याद करा सके। अपने जनाजे के लिए, अपनी दुआ के लिए हम बच्चे को दुआ भी ना याद करा सके हैं। उदों कज़न स्यापा नहीं सी। आखिरी बात है, उदों कज़न स्यापा नहीं सी, आंटी अंकल पापा नहीं सी, एडे चिट्टे खून नहीं सी, कुड़ियां दे कोल खून नहीं सी। इज्जतमंद यार हुंदे सी, यारां दे यार यारां दी इज्जत नूं किवें समझदे सी? उहदे घर बूआ नहीं सी खड़काउंदे, उहदियां भैणां जवान मैं खूह ते मिल ला। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपकी दाद देने का। आप मुल्तान के दोस्त आपको माशाल्लाह याद रखेंगे जितने बाहर से आए हैं। ये बातें इंशाल्लाह आपको काम देंगी कि वीरो जिन्ने तुसी बैठे जे मेरे चन्न मेरे मक्खन मेरी मलाई, मैं तुहाडे नाल इंज प्यार करना जिवें सस तगड़े जवाई नाल प्यार करदी। हाँ जी, ये मैं लफ्ज़ तगड़ा जवाई क्यों किया है? क्यों क्या भला आ ईद लंघी है ना तो माड़ा जवाई आवे ना तो तू रवे अंतरा हथ लंघाउंदा तुरिया आउंदा कितों वेंदा रिश्ते कराउण वालों भी गालां पैंदियां ते जो तगड़ा जवाई मुल्तानों जाए हैं काला कुल्लू से चौंसा अंब अनवर लटोर सहारनी दशहरी लंगड़ा हैं बोलो काला चौंसा सोन हलवा छापर भरे होन ते बूहिया लंघदा जाए तो सस दी नज़र पवे मां शकरे जाए बिस्मिल्लाह पुत मैनूं राती खाब आया सी मेरा पुत आया। मैं खाब तो तेनों छापरां दे आए ने। खाब आंदा ते माड़े पुत्र दा भी आंदा, ठीक खाब आंदा ते माड़े पुत्र दा भी आंदा। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपने अपनी बेटियों को ये सिखाना है। अगर दमाद अमीर हो गरीब हो, ये एक सस को मैं बता रहा हूँ कि आपने अपनी बेटियों को सिखाना है कि मेरी माँ ने अपने दमाद की इज्जत कैसे की थी, कल वो आपकी बेटी भी उस तरह ही करेगी। आज कितने बैठे हैं
उदों कज़न सियापा नहीं सी, आंटी अंकल पापा नहीं सी, एडे चिट्टे खून नहीं सी, कुड़ियां दे कोल फोन नहीं सी, इज्जतमंद यार हुंदे सी यारां दे, सोहने कुंड हुंदे सी मटियारां दे, छोटे भरा हुंदे सी वीरे, छोटे भरा हुंदे सी वीरे ते वड्डे हुंदे सी भा। हर घर दा एक भा हुंदा सी, भा दा जो भा हुंदा सी ओही सब दा भा हुंदा सी। हर घर च एक चौधरी सी ते ओनू काम नहीं सी करन दिंदे, ओनू पग पवा के ते ऐस वड्डी कुर्सी ते बिठाउंदे सी कि साडे घर दा चौधरी है। उदों इहो जिहियां बुढ़ियां भी नहीं सी हुंदियां जिन्हें लै कमाइए असीं ते खावे ए वेला बैठ के चलो वखरे हो बात। नहीं नहीं नहीं, वो कहती थी साडा एक वड्डा चौधरी है, यही गल करे सब नाल। मेरे दोस्तों अज भी वो पैदा कर लो, हर घर च एक चौधरी बना लो, हर घर च एक वड्डा बना लो। इंशाअल्लाह कदी तुहाडे बच्चे ज़ाया नहीं होणगे, बच्चे सीखणगे तुहाडे कोलों। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू इस चीज़ों को सुन के अमल की तौफीक अता फरमाए। आई सलूट यू कहता हूँ, ये जनाब इतने अदबी लोग बैठे हैं जिनकी किताबें लिख कर पूरी कौमें क़यामत तक ना जी आपसे मुस्तफ़ीद होंगी। और आपको मैं आई सलूट यू कहता हूँ, आई लाइक यू कहता हूँ, और मैं लाहौर जाकर कहूँगा आई मिस यू। ये क्यों कहूँगा मिस यू कि आप वो लोग हैं जिनको रसूल खुदा ने कहा था लिखो ये कुरान आने वाली नस्लों तक महफूज हो जाए। और वो कुरान लिखा गया कहाँ से? चमड़े पे। ये जितने आप बैठे ना कभी ना घबराना। मैं आपको ये बात बता दूं, आपको तो कागज़ मुयस्सर भी है तो आप लिखते नहीं ना। इमाम शाफी ने अपने बाजू पे लिखा था, तो इमाम मालिक कहते हैं ऐ शाफी तुमने मुझसे चमड़े का सवाल क्यों नहीं किया? तो कहने लगे मेरी माँ ने कहा था अल्लाह मेरे शाफी को फ़कीर ना बनाना, इसलिए मैंने आपसे सवाल करना पसंद ही नहीं किया, मैंने अपने बाजू पे हदीसें लिख ली। इसका मतलब है आपके पास कलम ना हो, कागज़ ना हो, इमाम शाफी की सुन्नत को याद रखना, ज़मीन से तिनका पकड़ कर अपने लब से बाजू पे लिख लेना। ये लिखने वाला ही आज कौमों पे राज करता है। इमाम शाफी हर गली में नजर आता है। कैसे आता है? हर आलम की ज़बान पे है। अगर इमाम शाफी साहब बहाना करते कि मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं, तो उनका नाम मुसन्नफ में ना आता, इमाम में ना आता। आप भी उन लोगों में शामिल है। आप ये मत कहें कि हमारे पास ज़राए अपना जी वसाइल नहीं, किताब छपेगी किमें? लिख तुसी दवो, आने वाला वक्त फैसला करेगा। उन छुपान वाले लभदे फिरनगे कि भाई अब किताब लिखने वाले कोई नहीं, ये लिखी पढ़ी इसको ही नशर कर, तब आपकी वो लिखी हुई किताब तुम्हारे लिए ज़रिया निजात बन जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आज का ये हमारा मिलना, आपके साथ मेरे ये बातें करना अल्लाह ये कबूल फरमाए। और मेरे चांद, ये मेरे मक्खन, ये मेरी मलाई, जितने मैं लोगों से मुखातब हुआ हूँ, आपके दिल में अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आइए हम सॉरी करता हूँ। मगर सॉरी दे भी दो तरीके ने, अंग्रेज़ सॉरी करे, वड्डा सॉरी करे तो असीं मान लेने, माड़ा बंदा ताड़ी गड्डी च वज जाए ना, वो कहे ना सॉरी है, सॉरी दा मामा बेड़ा कर दिता, सॉरी दा मामा। भाई ये भी बदले अपने आप को, हर एक की सॉरी को सॉरी समझा करें। और आखिरी जड़ी गल तुहानूं पूरे मजमे नूं चाहीदी है ताकि तुहाडे ते मिट्टी ना पवे। ऐ सुन लो, जदों तुसीं बाहर निकलना है, तुहाडे पैर ते पैर आ गया, या किसी का नां ना लिया गया, या किसी को अवार्ड ना चज ना दिता गया, या किसी की इज्जत ना की गई, तो ये नहीं बाहर जाके कहना चंगा फिर हुण तुसीं प्लेटफार्म चला के विखाया जे, नहीं मिट्टी पा दिया जे। अगर अपने गुस्से ते मिट्टी ना पाई तो यो ही गुस्सा तेरे ते मना मूँह मिट्टी पा दे। खुद तुम उस गुस्से के नीचे दब जाओगे। इसलिए नुकसान से बचने के लिए तुम्हें बर्दाश्त ज़रूरी है। लखां बेर बेरी नूं लगदे ते झड़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पक्कल लाल मुहम्मद ओह ही खांदे वट्ठे, मिठा मेवा बेरी देवे मुड़ भी वट्टे खावे, वेख बेरी दा सबर मुहम्मद मुड़ फल भी दिती जावे। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। मैं गुजारिश करूँगा अवार्ड्स की तकसीम के लिए सबसे पहले तशरीफ़ लाएंगे अब्दुल रहमान रज़ाकी, मैनेजिंग एडिटर किरण रोशनी, और इनके बाद गुजारिश करूँगा अहमद अदनान तारिक से।
किरण रोशनी। अवार्ड्स की तकसीम के बाद हमारे प्रोग्राम के आखिरी 2 मुकर्रीन हैं और फिर तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम है। गुलाम मुस्तफ़ा, शुगर बाइंडिंग से गुलाम मुस्तफ़ा अपना अवार्ड वसूल करेंगे। इंचार्ज तालीम सफ़ा किरण रोशनी, मैं दावत दूंगा अवार्ड वसूल करने के लिए मियां अब्बास कुरैशी को। स्टेज पर दावत दूंगा जनाब अज़र सलीम मलूका साहब को, अल्लामा नासिर मद्दी से अपना अवार्ड वसूल करेंगे। मुख्तार हुसैन सोमरो, सरपरस्त अदबी गिरने। मुख्तार हुसैन सोमरो, अमानुल्लाह नैयर शौकत, जनाब अमानुल्लाह नैयर शौकत, मेंबर मजलिस मुशावरत किरण रोशनी, डिप्टी एडिटर अदबी गिरने व मेंबर मजलिस मुशावरत किरण रोशनी, कारी मोहम्मद अब्दुल्ला। ये सागर साहब के दोस्त भी हैं, सागर सिद्दीकी साहब के। अब्दुल समद मुजफ्फर, मोहम्मद नादिर खोकर और लाहौर से अमजद नजीर। फूलबाई अब्दुल समद